Today we will learn section 134 subsection 5. Section 134 subsection 5 of the Companies Act 2013. What it states? What is section 134 subsection 5? So the provisions related to directors' responsibility statements are provided under section 134(5). So provisions are related to directors' responsibility statements. Directors' responsibility statement are provided under section 134 subsection 5. So there are in total 6 points mentioned under this. So this subsection requires to state that in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures. So whenever you prepare annual accounts, applicable AS accounting standards must be followed along with explanation. So when you will prepare annual accounts, applicable accounting standards had been followed. You have to see that applicable accounting standards had been followed along with explanation. Applicable accounting standard followed along with explanation. Then second point is the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent. So second thing is कि जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ चुनी हुई हैं और उनको कंसिस्टेंटली रेगुलरली उसको अप्लाई करते हैं और जजमेंट्स भी देते हैं, अपनी राय भी रखते हैं और estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of financial year and of the profit and loss of the company for that period. तो सेकेंड पॉइंट डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में यही कहता है कि डायरेक्टर्स ने ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चुना है और उनको अप्लाई किया है रेगुलरली और उस पर अपनी राय भी रखी है और ऐसे एस्टिमेट्स बनाए हैं जो कि रीज़नेबल है, जो कि ठीक है और एंड प्रूडेंट है, ताकि हम ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके स्टेट ऑफ अफेयर्स की हाँ कंपनी सही से काम कर रही है. सेकेंड पॉइंट इज डायरेक्टर्स सिलेक्टेड accounting policies and applied them consistently. Now third point is the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the
of this act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities. तो सबसे पहले बताइए कि एसेट्स की देखभाल करना, वो सुरक्षित रहें और कोई भी गड़बड़ घोटाला ना हो, अगर हो तो उसको डिटेक्ट कर सके, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? डायरेक्टर्स की है। तो डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर और सफिशिएंट केयर करनी पड़ेगी मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी रहता है, चाहे वो रिकॉर्ड्स का हो या एसेट्स का हो। तो एक मेंटेनेंस होनी चाहिए ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जैसा कि एक्ट बोले वैसे ही होना चाहिए। किस लिए होनी चाहिए? ताकि एसेट्स को हम सेफगार्ड कर सकें, सुरक्षित रख सकें, और कोई भी फ्रॉड और अदर इरेगुलरिटीज़ है उसको हम प्रिवेंट कर सकें और डिटेक्ट कर सकें। So the third point is directors had to take proper and sufficient care of maintenance of accounting records. So the third point is maintenance of accounting records. डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एनुअल अकाउंट्स है आपके कंपनी के, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी दी होनी चाहिए उसमें। और सेकंड क्या है? सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डायरेक्टर्स ने सही पॉलिसी चुनी अकाउंट्स की और उनको रेगुलरली अप्लाई भी किया। और थर्ड है रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं ताकि एसेट सेफ रहें और फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकें। क्यों मेंटेनेंस करना है? एसेट्स सेफ रहे, और सेकेंड पॉइंट इज मेंटेनेंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एंड द सेकेंड थिंग इज फ्रॉड डिटेक्ट कर सकें। Now the fourth point is the directors had prepared the annual records on a going concern basis. आप एनुअल अकाउंट्स इस बेसिस पर बना रहे हैं कि आपकी जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है, कभी भी बंद नहीं होने वाली है, वाउंड अप नहीं होने वाली है। तो आपके एनुअल अकाउंट्स ऐसे बने होने चाहिए कि आपकी एंटिटी अभी भी चल रही है, अभी भी गोइंग कंसर्न है। ये है डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेटमेंट में ये सब मेंशन होना चाहिए कि आपकी एंटिटी अभी भी ऑपरेट करेगी, उसका कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस रोकने का। फिफ्थ पॉइंट है डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी had laid down internal financial controls to be followed by the company, and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. लिस्टेड कंपनी के केस में जो डायरेक्टर्स होते हैं, ये हो गया। अब आते हैं हम लिस्टेड कंपनी के केस में जो डायरेक्टर्स होते हैं, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के केस में जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को ले डाउन किया है और कंपनी उसको फॉलो भी करती है उन कंट्रोल्स को। और ये कंट्रोल्स जो कंपनी ने लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर्स ने डाले हैं वो एडिक्वेट हैं और अच्छे से चल रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। तो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी डायरेक्टर्स ने ले डाउन किया है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ओके, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। And last point is directors had devised proper system to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively. And the last point is कि डायरेक्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने प्रॉपर सिस्टम्स को लगाया हुआ है अपने ऑर्गेनाइजेशन में ताकि कंप्लाइंस को वो देख सकें। तो
आप अकेले आप कंप्लाइंस नहीं देख सकते, आपको एक प्रॉपर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप करना पड़ेगा, डिवाइस करना पड़ेगा, जो एप्लीकेबल लॉज, जो भी एक्ट्स हैं, प्रोविजंस हैं कंपनी एक्ट के या किसी भी लॉ के, उसकी कंप्लाइंस पे नज़र रखें, देखिए कि आपकी कंपनी फॉलो कर रही है रूल्स को कि नहीं कर रही है. सो डायरेक्टर्स हैड डिवाइस्ड प्रॉपर सिस्टम, डिवाइस्ड प्रॉपर सिस्टम, डायरेक्टर्स ने प्रॉपर सिस्टम लगाया है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी है, ये जो आपने सिस्टम लगाया वो काफ़ी है और अच्छे से चल रहा है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. एडिक्वेट सिस्टम है, वो जो भी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया है वो एडिक्वेट होना चाहिए और अच्छे से काम करना चाहिए. ऑपरेटिंग इफेक्टिवली काम करना. तो ये 6 चीज़ें थी. दीज वर द 6 पॉइंट्स अंडर द प्रोविजन of section 134 subsection 5 director's responsibility statement. Okay, thank you.